Fine. So the topic is called lambda expression. ओके, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन से कुछ बेनिफिट मिल सकता है तुम लोगों को इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो थोड़ा सा देखो, अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछो कि क्या ऐसा क्या चल रहा है। तो बिफोर गोइंग इनटू लैम्डा एक्सप्रेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। वी लर्नड अबाउट इंटरफेस, राइट? रिमेंबर इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन। तो वैसे ही एक इंटरफेस होता है जिसको बोलते हैं, इंटरफेस होता है उसको जिसको बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। ओके, फंक्शनल इंटरफेस। व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? फंक्शनल इंटरफेस इज the interface that contains only one abstract method. A functional interface that contains only one abstract method. Abstract method means the method without method body. So the interface which is having or जिसके अंदर only one functional interface or sorry abstract method है, that will be called functional interface. Okay, so it can contain other methods like default and static methods, correct? But function, I mean abstract method should be only one. So देखो कैसे कैसे इसको मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ वो देखो पहले, ठीक है? तो मैं एक ओके फाइन, यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ मैं, सॉरी इंटरफेस बना लेता हूँ, इसमें कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस डॉट जावा। ओके, oh sorry, this is my interface. Functional interface Java. So we will create one interface. Okay, so what is functional interface? The interface that contains only one abstract method. Suppose or rather int um, add. Okay, so int add is a one abstract method, and inside this int a comma int b, right? So this is my one of the abstract method. Okay, now you can have default and static methods. As default and static method can have method body inside interface, we learned, right? So suppose this is a default void, let's say display, sorry, display, we are displaying something, this out, display something. Okay, so we can have default or static method, but uh, only one abstract method. Now to ensure that the interface should be functional, that means uh, it will only have one
abstract method, we can annotate it using functional interface. See, this is my annotation, functional interface. Now if I want to create another abstract method here, okay, suppose this is my sub. See, I am getting one error, invalid functional interface annotation. Okay, so it will not let me write more than one abstract method. Correct? Understood this much? Okay, so repeat what? ये देखो ना, इसमें अगर मैं सबट्रैक्ट और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैं डालना चाहता हूँ, ओके, लिखना चाहता हूँ, तो it will not allow us to write it because it is already I have annotated with functional interface. So functional interface will only allow, will allow only one abstract method. ठीक है? Now अभी let's focus on implementation of interface, because anyway इंटरफेस को अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे दैट इंटरफेस इज ऑफ नो यूज. करेक्ट? वो मेथड विदाउट मेथड बॉडी लेके हमारा फ़ायदा क्या है? वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन द राइट वे, राइट? सो लेट मी क्रिएट वन क्लास functional interface IMPL implementation class. Okay, so this is my class. So see, this is my main method, and how we implement any interface using this implement keyword, right? Using this implements keyword. But there is another way to implement the interface. Is suppose we are directly creating an object of the interface, okay, which is not possible basically. So this is obj equal to new functional interface, and if you see, I am getting opening braces and closing braces here as a body. So what it is saying me to implement the unimplemented method or inherited unimplemented method. Correct? So देखो, इसको मैं क्विक फिक्स करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करूँगा, तो आई विल गेट दिस इम्प्लीमेंटेशन हियर. सेम वे, राइट? हम लोग जब इम्प्लीमेंट्स करते हैं तभी भी ऐसे ही ओवर मतलब ऐसे ही आते हैं. करेक्ट? फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड. Correct? Now it is taking a good amount of a good amount of coding, right? A good amount of coding here. So instead of this, what we can do instead, we can make use of lambda expression. Okay? Make use of lambda expression. How to do that? देखो, so my interface was functional interface, and this is my object, okay, equal to. अभी वो उतना कोड लिखने मतलब without having those kind of codes, we can have, see, there is only one method, right? Only one abstract method. So what are the arguments? First we will write the arguments. Okay, first we will write the arguments. So like that. So int a comma int b. So anything can be happen, and then we will use one
function which is called arrow function. Okay, int a, int b, and then arrow function, right? Arrow function, and then next is we will simply write, it will return something, right? It will return something. So we will return a plus b. ओके, ए प्लस बी. क्या बोल रहा है ये? अच्छा, यहाँ पे कैन नॉट कन्वर्ट इंट टू क्लास. जस्ट अ मिनट. Lambda signature does not match the signature of the functional interface method. Annotation type. Annotation type is not the method, right? Why it is not happening? At the rate functional interface. Okay, functional interface. This is Java Lang functional interface, right? But what is एक सेकेंड. मैं देखता हूँ इस क्या प्रॉब्लम हो रहा है. शायद से मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. न्यू फंक्शनल इंटरफेस अगर मैं करूँ तो व्हाट इज़ द annotation type. Why annotation type is taking? What is that? When minute सर्च करता हूँ गूगल में, नहीं तो to implement. Generation class. फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. लेट मी चेक. This is my functional interface, right? Functional interface.
व्हाट इफ ये फंक्शनल इंटरफेस में यूज़ नहीं करता हूँ तो क्या होगा? Why this annotation type is coming? समझ में नहीं आ रहा है. कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? क्या चल रहा है ये? ये तो interface, this is interface, right? This is common interface. Now if we want to create the implementation class functional interface impl dot java, सिंपली अगर मैं implements करता हूँ, implements functional interface tut, then it should give me what? Add, correct. So that is fine, I think. Now inside main, or rather if I want to main method and here functional interface, sorry, functional interface tut j equal to new functional interface tut, and then what will get? Now it is coming. आई थिंक ये फंक्शनल इंटरफेस ट्यूट की जगह मैं फंक्शनल इंटरफेस यूज़ कर रहा था. तो एनीवे देखो, तो वो था एक मतलब इम्प्लीमेंट करने का तरीका. और नेक्स्ट इज, देखो फर्स्ट हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा. कैसे? नाउ व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट वी पास्ड? इंट ए कॉमा इंट बी. सिंपल. Then we'll use a function called arrow function. Okay, arrow function. And what is the we have to return something, right? Here we have to return any int type, correct? So what we'll do, we'll simply return a plus b. Okay, and that's it. ये हो गया तुम्हारा वो जो इम्प्लीमेंटेशन वाला थिंग. दैट्स डन एक लाइन में, करेक्ट. इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू just write like this, or simply without any braces, if you want you can also provide this kind of thing. Sorry, no, return is forcefully written, so we'll have to use so this is called lambda expression. Okay, now this lambda expression actually the whole thing. Okay, तो देखो ये ऑब्जेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, कैन बी डन यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन. Implementation of any
functional interface can be done using lambda expression. Why functional interface? Because functional interface only contains one abstract method. Abstract method. Now, if there are more abstract methods, right? So this kind of expression cannot be used. These kind of expressions cannot be used. Why? Because simply हम लोग ऐसे एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, राइट? इंट ए इंट बी. तो ये कौन सी मेथड का आर्ग्यूमेंट है? जावा विल गेट कन्फ्यूज्ड. सो ओनली interface is having that contains only one abstract method can be implemented like this. देखो समझ में आया कि नहीं? Now if you just simply put this out, obj dot add, simply add two numbers, and then you will get number 3. See, it's the 3. देखो ये समझ में आया कि नहीं आया तो बताओ. हाँ, only one abstract method. Abstract method क्यों one abstract method? Because ये देखो ये this works on some expressions. Expressions means just one liner code I have written, right? वो ऐसे override then implement, those things I have not written. So ये सिर्फ एक मेथड रहेगा तो ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक. Otherwise if it is having more than one methods, more than one abstract methods, then it will get confused, right? For which you want to implement it. For current Java architecture or current Java things, only one abstract method, or sorry, only the functional interface can be implemented using lambda expression. Okay, and this is the feature from Java 8, not before that. It was not before Java 8. Java 7 में ये lambda expression नहीं है. वो इवन वो डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स लिखने का प्रोविज़न भी नहीं था इंटरफेस में, ठीक है. वो सब जावा 8 का फीचर है, जावा 8 का फीचर्स है. तो लैम्डा एक्सप्रेशन भी जावा 8 का ही फीचर है. तो ये जो मेथड्स हम लोगों ने लिखे हैं कि इसको बोलते हैं टू आर्ग्यूमेंट्स लैम्डा एक्सप्रेशन. इफ़ आई एम हैविंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे, ठीक है, ओनली वन आर्ग्यूमेंट, then we can have only one argument here. Int a, and simply return a. इसको बोलते हैं वन आर्ग्यूमेंट लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है. वन आर्ग्यूमेंट. सपोज आई डू नॉट हैव, आई डोंट वांट टू पुट एनी argument here, that will be called zero return. Just you have to put some numbers here. इसको बोलते हैं zero argument lambda expression, ठीक है. Zero argument lambda expression is basically that method doesn't have any arguments, that will be called zero lambda expression, zero argument lambda expression, right? Okay, so करके देखो. ये ऐसा एक इंटरफेस बनाओ, इंटरफेस बना के करके देखो, ठीक है. जस्ट share your screen and do it.
ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब नहीं आएगा। स्क्रीन शेयर करके करो, हाँ? हम्म। नहीं नहीं, लिखो ना, कुछ भी नाम दो ना, चलेगा। इंटरफेस का कुछ भी नाम दो, लैम्डा एक्सप्रेशन, ट्यूट इंटरफेस, ऐसा कुछ नाम दे दो। एल कैपिटल, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो। इंट, इंट, हाँ, स्पेस ऐड। अभी आर्ग्यूमेंट में जितना देना चाहते हो दे दो, 3। इंट एक्स, इंट वाई, इंट सी, हाँ, कर दो। तो तुम तो वही क्लास लिखे हो, इंटरफेस नहीं है ना, ये तो क्लास है। और क्लास की जगह इंटरफेस लिख दो। पब्लिक क्लास लैम्डा एक्सप्रेशन ट्यूट लिखे हो ना, उसको उसकी जगह इंटरफेस लिख दो। नहीं नहीं, क्लास की जगह क्लास, पब्लिक क्लास लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ क्लास राइट इंटरफेस। नो नो, कुछ आ गया, एक्स्ट्रा लाइंस आ गए, उसको हटा दो। लाइन नंबर 4 को हटा दो, हाँ, लाइन नंबर 4 को हटा दो। हाँ, लाइन नंबर 4 हटा दो।
हाँ, तो ये इंटरफेस के अंदर तुम्हारा एक ही क्या आया, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अभी इसको ना एनोटेट कर दो, ठीक है, इस पूरे इंटरफेस को एनोटेट कर दो @फंक्शनल इंटरफेस। वहाँ पे नहीं, इंटरफेस जहाँ पे डिक्लेयर किए हो उसके ऊपर, लाइन नंबर 1 के ऊपर, लाइन नंबर 1 में जाओ। हाँ, लाइन नंबर 1 के ऊपर, ऊपर, इंटर, ऊपर जाओ, यहाँ पे लिखो @फंक्शनल इंटरफेस, सेकेंड वन। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो तुम यहाँ पे दूसरा कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख नहीं सकते, एज यू हैव एनोटेटेड इट, तो यू आर फोर्सिंग दिस शुड बी योर फंक्शनल इंटरफेस। तुम ट्राई करके देखो एक अलग दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड तुम लिख सकते हो कि नहीं। यू कांट। एक और एक मेथड लिखने की ट्राई करो, इंट सब। हाँ, चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन एस कैपिटल स्ट्रिंग का। हाँ, उसको ये करो, मतलब आर्गुमेंट में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इट शुड नॉट अलाउ, तो उसको एंड कर दो। देखो ऊपर ऑलरेडी यू आर गेटिंग वन प्रॉब्लम, राइट। तो तुम्हें अलाउ नहीं करेगा कि मोर देन वन तुम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखो, ठीक है। द इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, ठीक है, इट्स नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, because why it is saying, because you have written two abstract methods, that is why it is telling you that it's not a functional interface. You may delete that functional interface annotation. So ये जो लाइन नंबर 6 का जो मेथड है उसको डिलीट कर दो। नाउ एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करो, क्रिएट वन इम्प्लीमेंटिंग क्लास। हाँ, हाँ, वही से lambda expression implementation or something like that, ये क्लास होगा। हाँ, ये सब प्रैक्टिस करो घर पे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हम्म, हम्म। अच्छा, यहाँ पे मेन मेथड लिखो, जस्ट टाइप मेन, सिलेक्ट फर्स्ट वन, नहीं हुआ, फर्स्ट वन सिलेक्ट करो। हाँ, ठीक है, चलेगा। हाँ, तो अभी वो जो इंटरफेस है लैम्डा एक्सप्रेशन ट्यूट, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोशिश करो। लैम्डा एक्सप्रेशन ट्यूट obj equal to new lambda expression tut, the fourth one, हाँ, this one, obj ऑब्जेक्ट वेरिएबल नाम दो। हाँ, कुछ वेरिएबल का नाम दो, obj करके वेरिएबल का नाम दो। वेरिएबल नाम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर्स। चलेगा। हाँ, तो ये देखो तुमको बोल रहा है कि यू मस्ट इम्प्लीमेंट दिस अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, राइट। क्विक फिक्स में जाओ, इम्प्लीमेंट करो उसको, ऐड को, क्विक फिक्स ऐड अनइम्प्लीमेंटेड। देखो तुम्हें ऐड करने का जो ऐड मेथड को इम्प्लीमेंट करने बोल रहा है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ये जो एम्पल अमाउंट ऑफ लाइंस तुम्हारे पास है, ठीक है, ये दिस कैन बी अवॉइडेड यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो ये न्यू से देखो, न्यू यहाँ पे लिखे हो, न्यू लैम्डा एक्सप्रेशन ट्यूट, वहाँ से लेके लाइन नंबर 12 तक डिलीट कर दो। नहीं नहीं, इक्वल टू रहने दो, लाइन नंबर 12 तक, हाँ डिलीट कर दो, डिलीट इट। नाउ यू हैव टू राइट द लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसा होता है कि फर्स्ट तुम्हें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट मतलब विद इन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट में हाँ, इनसाइड ब्रैकेट यू मेंशन 3 नंबर्स, इंट ए, इंट बी, इंट सी, व्हाटएवर। इंट वैसा नहीं, इंट ए, इंट बी, इंट सी, हाँ जैसे तुम आर्ग्यूमेंट मेथड में लिखे हो वैसे ही। इंट 3 नहीं, इंट ए, इंट बी, इंट सी, हाँ। अच्छा, कुछ भी चलेगा, ये कुछ वेरिएबल नेम के में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंट ए, इंट बी, इंट सी फॉर नाउ। नाउ तुम्हें वो एरो फंक्शन देना पड़ेगा, वैसा नहीं, एरो फंक्शन मतलब डैश एंड राइट एरो, डैश एंड राइट एरो, राइट एरो, करेक्ट। ए राइट एरो, लेफ्ट एरो राइट एरो नहीं होता है, राइट एरो, हाँ इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, अभी तुम्हें द ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो एक ये करो, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस लगाओ, कर्ली ब्रेसेस, हाँ। अभी यहाँ पे जस्ट लिखो रिटर्न, इनसाइड दैट रिटर्न स्पेस ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है, सेमीकोलन दे दो, अंदर भी बाहर भी, ए प्लस बी प्लस सी के बाद सेमीकोलन, हाँ वो इसके अंदर भी एक सेमीकोलन होगा क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है अंदर, राइट। सो ये हो गया, ये जस्ट तुम्हारा हो गया वो इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन वाला थिंग, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ लैम्डा एक्सप्रेशन में ऐसे एरो फंक्शन के, आई मीन यूजिंग दैट एरो फंक्शन यू कैन डायरेक्टली implement whatever method body you are having, right? You can directly write that here. The lines of codes are reduced basically. तो ये अभी सिंपल, अभी नेक्स्ट लाइन में तुम अगर लैम्डा डॉट ऐड करके तुम ये करोगे तो यू विल गेट द एक्चुअल रिजल्ट। ओके, तो दिस इज हाउ लैम्डा एक्सप्रेशन इज यूज्ड, ठीक है। टू ऑलवेज रिमेंबर व्हाई, आई मीन इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हो व्हाई लैम्डा एक्सप्रेशंस आर यूज्ड। तो लैम्डा एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू implement the unimplemented method of a functional interface, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस को तुम यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसका उसका जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, अभी वो दैट यू कैन डू यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, नाउ इसका कुछ यूजेस है, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन हमारे पास कुछ इनबिल्ट इंटरफेसेस है जावा में। ओके, जावा में हमारे पास कुछ इनबिल्ट इंटरफेसेस है। तो जावा में इनबिल्ट इंटरफेसेस मतलब सॉरी, अच्छा अभी शेयर्ड है ना, हाँ। तो देखो जावा में कुछ इनबिल्ट इंटरफेसेस हमारे पास है, जैसे वन थिंग इज जावा यूटिल फंक्शन के अंदर एक प्रेडिकेट करके एक इंटरफेस होता है, प्रेडिकेट इंटरफेस। ओके, वो प्रेडिकेट इंटरफेस की ही मतलब कुछ नंबर हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे,
functional interface IMPL, right? So let me write it here. Okay, let me write the code here. देखो प्रेडिकेट करके हमारे पास एक इंटरफेस है, प्रेडिकेट। ये देखो जावा यूटिल फंक्शंस के अंदर ये प्रेडिकेट में तुम अगर इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो इंटीजर डाल रहे हो, इंटीजर इक्वल टू, मुझे सपोज इवन नंबर्स ये करना है, चेक करना है वेदर नंबर इज इवन, ठीक है? तो इज इवन इक्वल टू, तो ये जो प्रेडिकेट में जो मेथड है हमारे पास, प्रेडिकेट इंटरफेस में जो मेथड है उसका ऐसा है। ओके, सपोज एन, आई वांट टू चेक दिस, एन शुड बी what? n should be divisible by 2, correct? n should be divisible by 2 equal to 0. okay, अभी if n is even, then the modulus of n, modulus 2 should be 0, correct? And then simply we will put what was that? Okay, simply we can put here इसको यूज कैसे करूँ, ओके, देखते कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा, इज इवन डॉट टेस्ट इज द मेथड। ओके, टेस्ट इज द मेथड, आई मीन जो मेथड हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है ना, वो है ये टेस्ट मेथड। टेस्ट क्या है? 4 इज इवन और नॉट इवन, इट्स अ इवन नंबर, राइट? 4 इज एन इवन नंबर, so we'll see if 4 is even number or not. So if we run it, then see it is saying it's a true. Okay, so test method is a boolean means it will return true or false. Okay, तो देखो ये कोई नंबर इवन है कि नहीं, without having the if statement, a long if statement, we can easily implement or easily find out using predicate interface. Predicate interface is a inbuilt interface. So it has one abstract method called test. Now ये test जो है ना, ये test it can be anything. Suppose तुम एक प्रोग्राम लिख रहे हो, दैट प्रोग्राम मतलब जैसे मैं बोला था कि एक नंबर वो पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करना है, और एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करना है, मतलब सीधा और उल्टा सेम, राइट? तो वो इम्प्लीमेंटेशन तुम ऐसे प्रेडिकेट इंटरफेस से दिखा सकते हो। ओके, यूजिंग द प्रेडिकेट इंटरफेस यू कैन easily do that without using a long for loop or whatever you are using right now, if statements and all. So that can be achieved using lambda expression. Okay, understood? समझ में आया? ओके, देखो प्रेडिकेट इंटरफेस एक इनबिल्ट इंटरफेस है, एंड एज आई जस्ट टोल्ड, प्रेडिकेट इंटरफेस अ फंक्शनल इंटरफेस. Why? What is functional interface? It will have only one abstract method.
दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज द नेम टेस्ट. ओके, वो लोग एक इंटरफेस क्रिएट किया है जिसके अंदर एक टेस्ट करके मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. नाउ ये टेस्ट मेथड रिटर्न्स बुलियन. सी, इट रिटर्न्स बुलियन, राइट. तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स देगा. नाउ ये टेस्ट में तुम कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. जस्ट हियर व्हाट वी डिड, we checked whether a number is even or not, whether a number is even or not. So ये देखो यहाँ पे मैं चेक किया कि n मॉड्यूलर, सॉरी, दिस इज कॉल्ड n मॉड्यूलस 2 it should be 0, means n% 2 should be 0. What does it mean? The n should be divisible by 2. n should be divisible by 2, correct? n should be divisible by 2. तो दैट इज़ वाई कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा तो ज़ीरो. तो ये एक्चुअली रिमाइंडर निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन है. ओके, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए. दैट इज ओनली देन द n शुड बी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट. तो जब भी तब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 2. रिमाइंडर इज 0, राइट? इफ 6 इज डिविजिबल, आई मीन डिवाइडेड बाई 2, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 0. हाँ, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2. तो वो मैं चेक कर रहा हूँ यूजिंग एन एनी नंबर, राइट? एन एनी नंबर, एंड वो चेक कर रहा हूँ वेदर it is divisible by 2 or not. And then simply is even dot test को कॉल कर रहा हूँ एंड नंबर को पास कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं अगर 5 करूँ, ठीक है, 5 डिविजिबल बाई 2 और नॉट डिविजिबल बाई 2, राइट? सो इट विल थ्रो मी फॉल्स. ओके, अंडरस्टूड? तो ये प्रेडिकेट भी एक इंटरफेस, जो इंटरफेस जावा हमें देते हैं कि तुम यूज़ करो इसको, ठीक है. ओके, तो ये हो गया एक चीज़. दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ मीन्स लिस्ट, सेट, क्यू, ये सब के साथ भी हम लोग ये आइटरेट वाला जो चीज़ है ना, आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग सम इंटरफेसेस, यूजिंग सम इंटरफेसेस. ओके, दे आर एनी वे कलेक्शन इंटरफेस के साथ कॉम्पेटिबल कुछ इंटरफेसेस है. ओके, कलेक्शन इंटरफेसेस के साथ कॉम्पेटिबल कुछ इंटरफेसेस है. तो वो इंटरफेसेस आर बेसिकली लाइक फॉर ईच है, फॉर ईच स्ट्रीम API बेसिकली. और स्ट्रीम API के साथ, स्ट्रीम API इज अ मेथड एक्चुअली. स्ट्रीम API इज अ फंक्शनल मेथड. स्ट्रीम API, सॉरी, फंक्शनल इंटरफेस. तो स्ट्रीम API यूज़ करके हम लोग कोई भी एक इंटरफेस को, और नॉट इंटरफेस, कोई भी एक लिस्ट और सेट और क्यू, एनीथिंग वी कैन आइटरेट. ओके, वी कैन आइटरेट, ठीक है. So let's see how we can use interfaces, lambda expression to use with list, ठीक है. तो let me create one, ये implementation class है. ये हो गया ना, ये समझ में आ गया. तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट. तो एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग. So list of string, let's say, and the name is list equal to new array list. Now ये लिस्ट में हम लोग कुछ नंबर्स ऐड कर और नेम्स ऐड करेंगे, स्ट्रिंग्स ऐड करेंगे. So this is my name, this is okay,
So this is a random list we have created, right? Now I want to iterate this particular list. See how to do that. Okay, तो ये हम फॉर लूप से हम लोग देखे हैं, राइट? फॉर लूप से हम लोग कर ही सकते हैं, फॉर ईच लूप से. तो देर इज अनदर वे वी कैन डू. Okay, there is another way we can do it. So list, it's a one liner solution. List dot for each. List dot for each. Okay, now for each के अंदर what we have to do, we have to simply we can do it like this. X x means the argument. Okay, sys out x. Okay, x sys out x. ठीक है, तो ये हो गया अपना वन लाइनर सॉल्यूशन. इसको मैं सी इट इज गेटिंग आइटरेटेड, ऑल द नेम्स आर गेटिंग फेच्ड. ठीक है, हाँ. वन लाइनर देना है, बस वन लाइनर देना है. Okay, instead of that we can also use another thing. Okay, system dot out we can also do like this. Okay, what is this system हाँ, ये नहीं रहेगा. ठीक है, ये देखो ये भी एक और एक मेथड है. I mean, ऐसा यूज़ नहीं करना, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज नॉन स्टैंडर्ड, राइट? वी बट इफ यू आर यूजिंग दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, okay, you can also use like this, system dot out double colon println. It will give you the same result. Okay, but I don't prefer this solution. बेटर स्टिक टू, कॉम्प्लेक्सीफाई करके फ़ायदा नहीं है ज़्यादा. तो दिस इज़ द गुड. ओके, ये समझ में आया ना? यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट है, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट. सो एक ही आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था. नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इट विल टेक. सो पहले जो किया था ना वो इंट ए बी सी, वो भी हम लोग ए बी सी कर सकते हैं. और अब यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, राइट? स्ट्रिंग एक्स, ठीक है, ये भी हो सकता है, सेम रिजल्ट है. बट तुम अगर एक्स मतलब ऐसे वेरिएबल भी पास कर रहे हो तो भी दैट विल वर्क, कुछ प्रॉब्लम नहीं. ये इंट नहीं है ना, लिस्ट जो है ये इंट है क्या? अगर इंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली इंट लेगा. ठीक है, ये लिस्ट जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. करेक्ट. So this is how we can use lambda expression with list. You can also use this using set or something like that. Okay. Okay. समझ में आया क्या ये? So suppose I want to find out any, you know, the all the numbers in a array, right? All the numbers in a array which is even numbers basically. So let me create some array, or let's say directly we can create some convert some list. Okay, so this is my list of integers.
integer, let's say numbers, equal to arrays dot as list. ओके, ये डायरेक्टली हम लोग किसी एरे को लीस्ट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दिस. ओके, डायरेक्टली हम लोग कुछ नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. सो एरेज एक लिस्ट ले लिया जिसमें ऑल द इंटीजर नंबर्स हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑल नंबर्स आर इवन नंबर. ठीक है, विच ऑल नंबर्स आर इवन नंबर. सो देखो कैसे करते हैं. सो दिस विल बी नंबर्स डॉट, हमें फिल्टर करना है, राइट. इवन नंबर्स को फिल्टर करना है, इवन नंबर्स को फिल्टर करना है, करेक्ट. तो फिल्टर करने के लिए हमें एक स्ट्रीम मेथड की ज़रूरत है. स्ट्रीम, ठीक है. numbers dot stream then dot filter. Okay, the filter is coming from where? Filter is coming from string. Okay, अंदर क्या ले रहा है? predicate. अंदर क्या ले रहा है? predicate. now यहाँ पे सिंपली हमें हमारा जो हमारा जो एलिमेंट्स है उसका जो कंडीशन क्या है? एक इवन नंबर होने का कंडीशन, इट्स एन डिविजिबल बाई 2 वी हैव टू चेक इक्वल टू 0. रिमाइंडर 0 होना चाहिए, राइट. रिमाइंडर 0 होना चाहिए. नाउ देन व्हाट? ये तो कंडीशन लेके हम लोग फिल्टर कर लिए. नाउ देन व्हाट? वी हैव टू आइटरेट. ये फिल्टर कर लिया हम लोगों ने एलिमेंट्स. सो टिल हियर यू विल गेट दिस 2 4 6 8 दिस वन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू iterate it. Okay, iterate this new thing. Okay, dot for each now simple जो हम लोगों ने किए थे, in sys out n. Okay, this one. और एक सेकेंड, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ. देखो, नंबर स्ट्रीम फिल्टर फॉर ईच in system.out.println. So this is the one-liner solution. We'll get all the even numbers. So if we just run it, you'll get, see, 2 4 6 8 10 are the even numbers. Okay. स्ट्रीम में क्या होता है? स्ट्रीम फिल्टर में तुम फिल्टर करते हो कि व्हाट ऑल नंबर्स आर इवन नंबर्स विद द कंडीशन. ठीक है. एंड देन फॉर ईच से क्या होता है? फॉर ईच से तुम आइटरेट कर रहे हो. ठीक है. तो ये सेम एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही लाइन है. ठीक है. आई हैव रिटन इट सेपरेटली बिकॉज टू गिव यू द गुड रीडेबिलिटी. बट ये सेम लाइन है, एक ही एक्सप्रेशन. देखो, इसका एंड एक ही सेमीकोलन है. करेक्ट, यस. राइट. देखो, इसको मैं कोड दे देता हूँ, अपने लोकल में एक बार रन करके देख लो. एक बार खुद के इसमें कर लो. हाँ, देख लो.
देखो ये आई मीन वन थिंग टू रिमेंबर, कोई अगर पूछे इंटरव्यू में कि ये जो हम लोग इंटरफेस और सॉरी लैम्डा एक्सप्रेशन कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या फंक्शनल फ्रेमवर्क है? आंसर इज नो, फंक्शनल फ्रेमवर्क नहीं है ये। ठीक है, देर आर मेनी मेथड्स, मेनी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, बट we can only use using for each or stream API. Okay, these are all stream API. तो ये stream APIs की जो methods है ये leverage कर सकता है. Okay, using the stream filter, using the for each methods, we can leverage the lambda expression or functional interfaces. ठीक है, ये स्ट्रीम एपीआई का, स्ट्रीम एपीआई एक फंक्शनल इंटरफेस है. दीज आर ऑल, दिस कैन बी आई मीन leverage, I mean that collection framework can leverage the lambda expression thing using the stream API. The stream API इसके methods है ये सब for each ये सब. Okay, if you see this is stream API. Okay, Java util stream, this is stream API methods. चला क्या ये अपने लोकल में चला? अच्छा ओके. क्या मेन मेथड लिखो, मेन मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा तुमको ये सब कुछ, मेन मेथड के अंदर, नहीं तो वो रन कैसे होगा फिर? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट वैसा नहीं, मेथड लिखना पड़ेगा ना. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या, ये क्या है? ये लो मैं पूरा दे रहा हूँ, इसको रन करो. क्लोजिंग ब्रैकेट दे दो एक मेन मेथड का. एंड में और एक ब्रेसेस दे दो. हाँ सेव करो क्लास, इसको रन करो. शायद से फाइल बनाने में कुछ प्रॉब्लम किए हो तो वो डिलीट करो फाइल, डिलीट द फाइल एंड अगेन क्रिएट इट. कुछ भी डाल दो, राम श्याम कुछ भी डालो, राम functional interface implementation.java. J small letter, J small letter. हाँ नाउ क्लास, वो जो मेन मेथड मैंने दिया पूरा कॉपी करके मेन मेथड के अंदर डाल दो.
पूरा डालो ना। हाँ ठीक है। अभी रन करो देखो। आ गया ना। प्रीतम क्लियर है ना? तो एनी क्वेश्चन? ओके, थोड़ा सा एक कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं इंटरव्यू का, ठीक है? देन विल बी डन। तो भाई लैम्डा एक्सप्रेशन कर पाओगे ना? ओके। लेट मी थिंक क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये कर सकते हो क्या? देखो, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है? जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक स्ट्रिंग है, लेट्स से स्ट्रिंग नेम इक्वल टू शुभम बैनर्जी, ठीक है? तो इसको मुझे रिवर्सली प्रिंट करना है। रिवर्सली प्रिंट करना माना तो ई जे ऐसे करके प्रिंट करना है मुझे, राइट? तो कैसे करोगे? ट्राई इट योर सेल्फ। एटलीस्ट अप्रोच बताओ कैसे करोगे। देन हाँ, रिवर्स कैसे करोगे? व्हाट इज द लॉजिक? इंडेक्सिंग ना? हाँ करो, देखो करो उसको, स्क्रीन शेयर करके करो, ट्राई करो। क्या जावा के लिए? प्रैक्टिस ना? नेक्स्ट बैच तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ।
हाँ, उनका तो अभी ऑटोमेशन चल रहा है, जावा तो ख़त्म हो गया उनका। हाँ, तो और एक लेडी है रूपाली करके, तो तीनों है, लेकिन वो अभी ऑटोमेशन चल रहा है, बट नेक्स्ट बैच अभी तक डिसाइड नहीं हुआ जहाँ पे। तो ये नहीं हुआ, अगर कुछ डिसाइड होता है, कोई आता है, तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। तो मैंने बताया भी था कि इसमें तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बट नो वन ज्वाइन, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे शायद। तो इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो जावा में क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जावा तो हम लोग काफ़ी डिटेल में कवर किए ही थे। अच्छा, प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस सेशन, विल वी कैन डू सम प्रैक्टिस सेशन। क्या? चलेगा, चलेगा, एनी वे वी कैन डू इट। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आएगा, ये आएगा इंटरव्यू क्वेश्चन में। ये करो, कोडिंग प्रैक्टिस करो, कोडिंग, कोडिंग प्रैक्टिस करो। कोई शेयर कर रहा है या फिर मैं दिखाऊं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। तो सपोज हियर जावा प्रैक्टिस कोड्स, ठीक है, डॉट जावा। तो हमें सिंपली स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, राइट। एक मेन मेथड ले लेता हूँ, इसमें एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ, नेम इक्वल टू शुभम, शुभम बैनर्जी, ठीक है। एक ब्लैंक स्ट्रिंग हम लोग लेंगे यहाँ पे, वेयर स्ट्रिंग, ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सपोज रिवर्स, हाँ, इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, ओके, nothing is there. Now what we have to do, we have to either we can create an array of characters. I mean, we can convert this string to array of characters, or we can also uh, directly use any character using character at char at, ठीक है, char at method, ठीक है। तो देखो कैसे होता है। इसको मुझे रिवर्स करना है, राइट। तो एक फॉर लूप हम लोग लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप आई, सॉरी, इंट आई इक्वल टू एकदम लास्ट वाले में जाएंगे, ठीक है, लास्ट वाले में जाएंगे, लास्ट वाला जो कैरेक्टर है, सपोज दिस वन। तो क्या करना है इसमें, नेम डॉट लेंथ -1, this is the index. Then the condition is I is greater than 0, greater than 0 or greater than equal to 0, because 0 is the index. I minus minus, now it should be minus minus. There's reverse for loop here running, correct. Now here we will simply do a reverse अपेंड करेंगे हम लोग, ठीक है, इक्वल टू, क्या अपेंड करना है, सिंपली मुझे अपेंड करना है नेम डॉट कैर एट आई, ठीक है, कैर एट आई, ठीक है। नाउ ये अभी अगर रिवर्स को अगर मैं प्रिंट करूँ,
सिस आउट रिवर्स को मैं अगर प्रिंट करूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा रिवर्स नेम। सी, रिवर्स नेम मुझे मिल गया, राइट? समझ में आया? ये दिस एग्जाम्पल इज, तुम कोई अगर पूछे कि कैन यू रिवर्स द स्ट्रिंग, यस, ये तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली पूछे कि विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर कैन यू डू दिस, तो ये भी उसका रीजन मतलब आंसर है। विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर वी डिड इट। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर, अभी मत पूछो व्हाट इज स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर, क्या है स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर, क्या है वो सब, क्या है? बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो। स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग जो हम लोग पढ़े थे। स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है ना, तो स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो म्यूटेबल है, ताकि हम लोग सेम ऑब्जेक्ट में हम लोग अपेंड कर सके, राइट? प्रैक्टिस ज़रूरी है सर, मैडम सर दोनों को मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे ना। ये कोडिंग ऐसा एक चीज़ है, 3-4 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी भूल जाओगे, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, ओके, और एक देखते हैं छोटा मोटा। ओके, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑकरिंग नॉन रिपीटेड कैरेक्टर है एक स्ट्रिंग में, वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? तो कैसा है देखो, एक लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से स्विस, this is my string. Now what is the first occurring non-repeated character? W, है ना? अदरवाइज एस जो है, एस तो ऑलरेडी रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है। मुझे देखना है कि नॉन रिपीटेड कैरेक्टर क्या है एंड वो फर्स्ट मैंने उसका ऑकरेंस क्या है, ठीक है? फर्स्ट मुझे आई नहीं चाहिए, आई भी नॉन रिपीटेड है, मुझे आई नहीं चाहिए, मुझे डब्ल्यू चाहिए, ठीक है? तो कैसे करोगे, क्या क्या लग रहा है, थोड़ा सा अप्रोच बताओ। ये बाय द वे इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे जो करना है वो है मुझे काउंट करना है, राइट? कैरेक्टर्स को काउंट करना है। बताओ ज़रा, लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा। कैरेक्टर काउंट करना है, डुप्लीकेट कैरेक्टर निकलना है, ऑलरेडी हम लोग किए हैं। बताओ थोड़ा सा ये करो। ओके, देखो, सोचना चाहते हो या फिर मैं दिखाऊं, बाद में प्रैक्टिस करोगे? अच्छा ठीक है। मैप, ओके, एक मैप में हम लोग लेते हैं कैरेक्टर एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग
इंटीजर मीन्स नंबर, राइट। ऐसे ही हम लोग किए थे ना, जब भी हम लोग जब भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स निकल रहे थे, तो यही अप्रोच था हमारा, कैरेक्टर इंटीजर, राइट। सो मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, सिंपल, ठीक है, न्यू हैश मैप। अभी क्या करना है, अभी ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, जो स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको आइटरेट करना है एंड पुट करना है इसके अंदर। देखो कैसे करते हैं। फॉर एक्चुअली फॉर ईच दिस इज माई this should be character char, एक कैरेक्टर एरे चाहिए, दिस बी सी, एंड कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है इसको, राइट। सो नेम डॉट टू कैर एरे, ठीक है, टू कैर एरे। नाउ व्हाट विल डू, विल simply put map dot put, ये important है, ओके। C means this character, will put it and we will put it ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, इसका डिफ़ॉल्ट जो नंबर है, ऑलरेडी जो नंबर है, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, मैप और गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट मीन्स गेट और डिफ़ॉल्ट, गेट मीन्स विल गेट what, will get C, if C is not there, I mean कोई मतलब कोई ऑकरेंस है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न करेंगे, ठीक है, ज़ीरो रिटर्न करेंगे और ज़ीरो पुट करेंगे। देन प्लस वन, ठीक है, प्लस वन। क्या था इसका, कितना, मैप डॉट गेट क्या है ये, पुट, ओके सॉरी, यहाँ पे प्लस वन, जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर कोई ऑकरेंस नहीं है, ठीक है। गेट और डिफ़ॉल्ट, गेट में क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू को गेट करते हैं, राइट, हम लोग वैल्यू को गेट करते हैं। अगर गेट मतलब कोई ऑकरेंस है ही नहीं, तो क्या होगा, वो ये होगा ना, मतलब वो कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो ऑकरेंस अगर नहीं है, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ज़ीरो है, उसके साथ हम लोग वन करेंगे, मीन्स प्लस वन मीन्स तुम एक कैरेक्टर डाल रहे हो इस मैप में, तो उसका जो नंबर, उसका जो वैल्यू है, हम लोग वैल्यू में इंटीजर दिया है, राइट। सो कैरेक्टर एंड इंटीजर, कैरेक्टर में हम लोग कैरेक्टर डाल रहे हैं एंड इंटीजर में हम लोग वो वैल्यू डाल रहे हैं, कितने बार ऑकरेंस हुआ है, तो प्लस वन करके वो इंक्रीज करता जाएगा। अगर नहीं है तो ज़ीरो, प्लस वन मीन्स वन, फर्स्ट ऑकरेंस इज वन, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी देयर, हाँ, जो नंबर आएगा यहाँ पे उसके साथ और एक ऐड होके आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सो ये रहा तुम्हारा डुप्लीकेट मेजर करने का जो फॉर लूप है वो, ओके, ये रहा तुम्हारा डुप्लीकेट मेजर करने का फॉर लूप, करेक्ट। नाउ we have to find the first character with frequency 1, first character with frequency 1,
कैसे करेंगे? सी, ये रहा एक फॉर लूप. नेक्स्ट थिंग, दिस फॉर लूप again for each. So again this will be char c, जो स्ट्रिंग है मेरे पास नेम, नेम डॉट टू कैर एरे. ठीक है, इसमें मुझे चाहिए एक कैरेक्टर चाहिए जो जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, राइट? इफ में जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम लोग दे सकते हैं कि दिस मैप, राइट, दिस मैप डॉट गेट सी इक्वल टू 1. इसका जो कैरेक्टर, आई मीन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, फ्रीक्वेंसी है, इफ इट इज 1, ठीक है, इफ इट इज 1 then simply what we'll do is sys out the character. ओके, sys out the character. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वो फर्स्ट ऑकरेंस को मुझे चाहिए, फर्स्ट ऑकरेंस मुझे चाहिए, राइट? तो सी, एंड व्हेन वी आर गेटिंग दिस, then we can put a break statement. ठीक है, अगर वो 1 है, फर्स्ट ऑकरेंस मिल गया, तो एक ब्रेक स्टेटमेंट देके मैं ये लूप से निकल आऊँगा. दैट्स इट. ओके, इसको अगर रन करे, सी, अच्छा, एस इज नॉट द रिपीटिंग, just a minute, ace is not the repeating, right? What is that? Map dot get. अच्छा, क्यों हुआ है? क्योंकि एस इज कैपिटल हियर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे ट्विक करना पड़ेगा. ट्विक ऐसे करना पड़ेगा, नेम डॉट टू लोअर केस. ठीक है, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ नेम डॉट टू लोअर केस. तो सारे जो है उसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट किया. नाउ इफ आई रन इट, सी डब्ल्यू इज द कैरेक्टर. W is the character. आया समझ में? ओके, फाइन. ठीक है, ये कोड मैंने दे दिया, ये ले लो कहीं पे तुम्हारे इसमें. ठीक है, फिर ऐसे हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे. और दूसरा, नेक्स्ट डे हम लोग डेवऑप्स का जो पार्ट बचा था, डेवऑप्स में एक प्रॉब्लम आ रहा था ना कि वो परमिशन नहीं मिल रहा था. ठीक है, वो परमिशन के इशू था वो डॉकर में. तो वो मैं देखूंगा कि वो डायरेक्टली मैं जेनकिंस इंस्टॉल करके अगर होता है तो, नहीं तो कैसे करते हैं एटलीस्ट वो बता दूंगा कि एक स्टैंड अलोन जॉब कैसे क्रिएट करते हैं, एंड कैसे डॉकर फाइल राइट करते हैं, वो सब मैं बता दूंगा. ठीक है, हाँ ऑब्वियसली उसमें तो कवर होगा ही. तुम्हें अगर पता है कि कैसे पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, कैसे
डॉकर फाइल यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल, आई मीन दैट इज़ एवरीथिंग फॉर इंटरफेस.